Good evening, friends. We are about to start a very special interactive session today. And the eminent personality that we are going to be interacting with is none other than Dr. S.P.S. Oberoi, the gentleman who has put himself in the books of history. And through his works of philanthropy, he has etched his name in the books of history, and very soon he would be joining us on this very special interactive session on 10 News Network. So as Dr. S.P.S. Oberoi joins us, I would like to brief all our very esteemed web viewers about the profile of Dr. S.P.S. Oberoi. He's going to get connected with us very soon. Yes. Dr. Oberoi? I have already shared the link with you, sir, on your WhatsApp. Please, if you can join. I've already sent it to you, sir. Yes. Please. Yes, sir. So, Dr. S.P.S. Oberoi is the founder and managing trustee of Sarbat da Bhala International Charitable Trust, a trust which needs no introduction. It has been in existence for last many years now and has done exemplary work in the field of philanthropy, helping people not only from the economically weaker sections of the society, but also across the spectrum. Dr. Oberoi's charity has been there to address the grievances of those in need, suffering, distress, and pain. And for the special children, there is a very special school which has been which came into existence a few years ago, that addresses the needs of the special children. And then there are some very remarkable initiatives in these times of Corona, which Sarbat da Bhala International Charitable Trust has undertaken. And I presume that Dr. S.P.S. Oberoi is about to join us, and then, of course, he would be sharing all the accomplishments which his trust has undertaken so far. But one thing is for sure, that people like Dr. S.P.S. are very rare to find, and he has not only brought laurels to the country, but also to the entire world through his acts of humanity. And this is the reason why he is hailed as a true champion of humanity. He's also nicknamed as Savior Singh, because he was instrumental in saving the lives of 17 Indians who were on a death row by a Sharjah civil court, and which, of course, by paying the blood money, he was able to get those. A very warm welcome to you, Dr. S.P.S. Oberoi, if you can hear my voice. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 न्यूज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर. आपको मेरी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब? हम कोरोना काल में जी रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि तकनीकी कभी कभी बीच में दिक्कतें आ जाती हैं ऐसे, लेकिन इरादे बुलंद होने चाहिए. और हम लोग भी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर. थैंक यू शर्मा जी. जी, तो मैं अभी आपकी तारीफ. जी बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ है. और मैं अभी आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, और जितने हमारे दर्शक साथ जुड़े हुए हैं 10 न्यूज नेटवर्क के माध्यम से, मैं उन लोगों को अवगत करा रहा था कि क्या अभी तक आपकी संस्थान जो है
सरबत भला इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट ने अभी तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं, और जी पहले मैं उनको, जो अभी आपके ब्लड मनी का जिक्र करा मैंने कि कैसे 17 हिंदुस्तानियों को जब फांसी की सजा मिली थी शारजा सिविल कोर्ट से, उसको फिर आपने कैसे तब्दील करा, उनको कैसे रिहा कराया, और उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। जो भी मानवता के लिए काम आपके पास आए हैं कभी भी, और आपने कभी भी उनको इनकार नहीं किया है, चाहे किसी भी वर्ग के हों। आपका जो सही मायने में धर्म जो है वो मानवता है, और आपने मानवता का संदेश इस कोरोना काल में भी दिया है, बखूबी आपने दिया है। तो मैं सबसे जी पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय जब से ये लॉकडाउन की घोषणा हुई है, डॉक्टर साहब, आपकी संस्था ने क्या क्या काम करे हैं और क्या क्या चुनौतियां रही हैं? शर्मा जी, ऐसे ऐसे सब लोग जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस पिछले 2 महीने से हम लोग सब लोग सफर कर रहे हैं, जी जो स्टार्ट हुआ और ऐसे फैल गया दुनिया में कि बहुत शॉर्ट टाइम में, तो इंडिया भी उसकी लपेट में आ गया। ऑफ कोर्स अब इंडिया में आ गया तो पंजाब ने भी इसकी लपेट में आना ही था। जी तो हमारा जो सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे हम पंजाब में काम कर रहे हैं या बाकी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो इस टाइम जी जो कोरोना के लिए सब संस्थाएं, जितनी भी एनजीओ थी, जी सरकारें, सब सब पूरा जोर लगा रही थी काम करने के लिए। तो मार्च का महीने की जो 15-20 मार्च को इतना जो मैंने महसूस किया कि ये जो कोरोना वायरस इधर आ रहा है, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये स्लो स्लो काफ़ी फैल जाएगा और ये जी लंबा चलेगा। जी तो उस टाइम मेरे को पता था कि यहाँ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से हम यही काम कर रहे थे कि कहीं हम जी डायलिसिस यूनिट लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं या सेमी ऑटो एनालाइजर दे रहे हैं, जो जो ये सब मशीनरी जो हॉस्पिटल में नहीं थी वो हम प्रोवाइड कर रहे थे जी हॉस्पिटल में। तो उसी टाइम ये महसूस हुआ था कि अभी वेंटिलेटर जैसे नहीं थे, बहुत कमी थी। तो सबसे पहले तो मैंने 20 वेंटिलेटर का जो ऑर्डर दिया, उसमें से 8 जी वेंटिलेटर जैसे आए थे उसी टाइम जहाँ कोरोना का जो नवा शहर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो हमने वो 2 नवा शहर में, 2 टांडा में, 2 गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में और 2 अमृतसर में इंस्टॉल कर दिए थे। लेकिन 12 जो बाकी हमारे आने वाले थे वो ऑन द वे थे, आ रहे थे। सेम वही बात हुई कि जो प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे, क्योंकि जब जब केस आने शुरू हुए तो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास जो है तैयारी नहीं थी पूरी। उनके पास पीपीई किट नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे, इंफ्रारेड थर्मामीटर नहीं थे। सो ये सब चीज़ें जो हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। जो पहली स्टेज में मैंने तकरीबन 15,000 जो पीपीई किट है उसका ऑर्डर किया, 5,000 का उसका किया, ऐसे 30,000 जो अपनी N95 मास्क है उसका ऑर्डर दे दिया था। तो 5-6 लाख हमने दिया था जो 3 लेयर मास्क है उसका। ऐसे अपने जी सैनिटाइजर्स हो गए। तो जब ये कोरोना थोड़ा जोर पकड़ने लगा तो हमारे पास ये सारी सप्लाई आनी शुरू हो गई थी। उस टाइम इतनी शॉर्टेज थी कि रेट भी इतने बढ़ गए थे, तो लोग ऑर्डर लेते ही नहीं थे क्योंकि रश बहुत था। लेकिन मैंने 3-4 जो कंपनियां थी उनको जिस रेट पे मेरे को मिला, मैंने उस रेट पे उनके ऑर्डर बुक करके उनको पेमेंट कर दी। और जैसे मेरे पास आने शुरू हुए, सबसे पहले मैंने जो हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ, पीजीआई हो गया, राजेंद्रा हॉस्पिटल हो गया, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, तो इन चारों को हमने हज़ारों की गिनती में, 1-1 हज़ार पहले हमने पीपी किट दी। फिर जो N95 मास्क है वो हमने सप्लाई कर दिए, 3 लेयर मास्क दे दिए, तो थर्मामीटर देने शुरू किए। तो ये पहले हमने मेडिकल कॉलेजेस कवर किए। उसके बाद पंजाब में जितने भी हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, हमने सारे सिविल हॉस्पिटल कवर किए। हर हॉस्पिटल में हमने पीपी किट जैसे होगी 30, 40, 50, 100 किट दे दी। फिर उसके बाद 200 N95 मास्क दे दिए, और जो हमारे 3 लेयर मास्क थे वो तो काफ़ी गिनती में दे दिए। तो साथ में अभी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हमारा, जो पुलिस प्रशासन बहुत फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहा है, उनको भी जरूरत थी कहीं कहीं असली संस्कार मायने में तो करना फ्रंट पड़ता लाइन था। के योद्धा वही हैं, डॉक्टर या पुलिस। बिल्कुल। देखो मैं जी 5 को गिनता हूँ शर्मा जी। देखो, जी डॉक्टर बिल्कुल लाइन पे आए हैं, उन्होंने फ्रंट लाइन पे आके काम किया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, और साथ के साथ देखा जाए तो सफाई कर्मचारी हैं जो हमारे, वो भी बिल्कुल। घर में नहीं बैठे, तो वो भी, उनकी भी बहुत देन है। और यहाँ ये सब लोग अब जा रहे थे, तो उस टाइम जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितने एनजीओ हैं, हम लोग भी घरों में नहीं बैठ सकते थे। तो हम भी सब निकले, घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब तक हम जाके
राशन पानी नहीं देंगे, जब और उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा। सो ये सारे जो है सबको आना पड़ा उसमें। तो इसके बाद फिर जो जितने पुलिस प्रशासन थे सबको मैंने, जितने हमारे 26 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं पंजाब के, हर डिस्ट्रिक्ट में हर एसएसपी के ऑफिस में मैं ये सारी चीजें जो है उपलब्ध कर दी, क्योंकि कई बार संस्कार करने जाना पड़ता था तो पुलिस जाएगी, क्योंकि पंजाब में तो ऐसा हुआ कि डेथ होगी तो फैमिली का कोई मेंबर संस्कार करने नहीं गया, तो उसने साफ ना कर दिया कि नहीं हम संस्कार करने नहीं जाएंगे, तो पुलिस प्रशासन को करना पड़ा। इसलिए उनको भी किटें चाहिए थी, तो हमने उनको किट भी दे दी, उनको N95 मास्क भी दिए, दूसरे मास्क ज्यादा दिए, क्योंकि जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, हर नाके पे हमारे पुलिस कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत थी। दूसरा जो हमने सैनिटाइजर दिए हैं वो सारे को 5000 के करीब जो शीशी थी हमारी 200 ml की, वो ज्यादा हमने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया कि हर सिपाही के पास 200 ml की एक जो है सैनिटाइजर की शीशी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा बाहर जा रहे थे। तो ये सारा जो था मेडिकल के ऊपर जो हमने काम करना था, तो ये हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, अभी कंटिन्यू है। देखो पहला जो था अप्रैल मंथ में हमने सारा सप्लाई किया था, अभी मई मंथ में जैसे कल ही मेरे पास जो पीजीआई रिक्वायरमेंट आई थी कि ये मटेरियल चाहिए अपने को, तो उस टाइम सप्लाई कर दिया। अभी सेकंड इस महीने में जितने जितने हॉस्पिटल जहाँ से कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही है, स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है बहुत, कि स्टॉक मैंने काफ़ी मंगा लिया था। जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे हम ये सेकंड टाइम उनको फिर ये फैसिलिटी सारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ओबराय साहब, दो बातें इस समय चल रही हैं जो लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये भी बात चल रही है कि जैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी तरफ से उनके प्रयास जारी हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, आर्थिक घोषणाएं हो रही हैं आर्थिक मदद की, लेकिन साथ में जो एक बात उभर के आई है इस महामारी के दौर में, वैश्विक महामारी के दौर में, वो ये आई है कि जो गैर सरकारी संस्थान है उन्होंने बढ़ चढ़कर जिस तरह से एक नजीर पेश करी है, अनोखी नजीर पेश करी है, उसने अपने आप में पूरे हिंदुस्तान, हम लोग जितने देशवासी हैं उनका सीना जो है गर्व से फूल गया है इस समय, कि जिस तरह से, और खासकर अगर आपकी संस्था की बात करें, सरबत दा भला इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, आप खुद जो मुझे अभी ज्ञान है जिस बात का कि आप वैसे दुबई में रहते हैं, लेकिन जब से ये कोरोना लॉकडाउन की घोषणा हुई, इत्तेफाक था कि आप हिंदुस्तान में थे उस समय, और तब से आप हिंदुस्तान में ही हैं, और आप यहाँ पर बिल्कुल 24 घंटे लगे हैं इस समय कि दिन को दिन नहीं समझ रहे, रात को रात नहीं समझ रहे, और ये देखने में लगे हैं आप कि कैसे जो है लोगों तक, जैसे आपने एहतियात की बात करी, जो भी उनके पास पीपी किट, सैनिटाइजर्स, N95 मास्क पहुंचाने हैं वो पहुंचाए जाए, मुहैया कराए जाए लोगों तक, अस्पतालों में डॉक्टरों के पास और पुलिस अधिकारियों के पास उनको ये मुहैया करा दिए जाए। और साथ साथ अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो राशन की सुविधा है, जो आपने राशन और खाने पीने की व्यवस्था कराई है, उसके बारे में थोड़ा आप हमें थोड़ी और रोशनी डालिए। शर्मा जी, बिल्कुल मैं इंडिया में था और मैंने 15-16 तारीख मार्च को मैंने वापस जाना था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एकदम बात आई कि अगर मैं वहाँ चला गया, ये बढ़ गया बहुत, तो मैं वहाँ स्टक हो जाऊँगा। लेकिन मेरी ज़रूरत जो वो पंजाब में, जो इंडिया में ज़्यादा थी, इसलिए मैंने वो प्रोग्राम अपना चेंज किया और मैं उस टाइम का यही हूँ। और राशन की आप बात कर रहे हैं, देखो क्या हुआ कि अप्रैल मंथ जब स्टार्ट हुआ ये मार्च एंड और अप्रैल में क्या था कि बहुत सारी संस्थाएं थी, जो हर आदमी दौड़ पे लगा हुआ था कि मैं भी राशन बांट लूँ, मैं लंगर ले जाऊँ, मैं ये कर दूँ। लोगों ने जितनी छोटी से छोटी संस्था थी उसके पास भी जो भी था उसने लगा दिया, और राशन ऐसे गया कि जैसे किसी को 2 बार मिल रहा है, किसी को 3 बार मिल रहा है, किसी को नहीं भी मिल रहा। सो इस बात में मेरा, मैं थोड़ा शांत हो गया, चुप था कि पहले इनका जोर लगने दो, क्योंकि उस टाइम हम राशन देते तो ठीक नहीं था। इसलिए एंड में आकर मैंने फिर स्टार्ट किया जो राशन देना। तो मेरे, जैसे मैंने पहले बताया कि हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस खुले हुए हैं, और हर ऑफिस में 25, 30, 40 हमारे मेंबर हैं, क्योंकि बड़ा सिस्टमेटिकली काम हमारा चलता है। और मैं एक मिनट आपको यहाँ पर, मैं 1 मिनट सिर्फ आपको 10 सेकंड रुकना चाहूंगा। देखिए, आपके इतना बड़ा आपका टीम है, टीम वर्क है, नेटवर्क है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये मुनासिब समझा कि आप खुद हिंदुस्तान रुके, पंजाब में रुके, ताकि अपने आप, आपके नेतृत्व में, आपके आंखों के सामने जो है सारे काम हों, ताकि तब उसका ज्यादा आप अच्छे तरीके से सुपरवाइज भी कर पाएंगे और व्यवस्था अच्छी तरीके से लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचानी है महामारी के दौर में वो कर पाएं। तो ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है। नहीं तो आपकी जो टीम है यहाँ पर, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है शर्मा जी। जैसे मेरी टीम में मैंने बताया कि 12-13 मेंबर पंजाब में है हमारा,
वो सब अपना दिलो जान से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ हूँ, मैं उनके साथ हूँ, तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, अगर मिस्टर ओबराय हमारे साथ है तो हम क्यों घर में बैठे। अगर मैं नहीं घर में बैठा, जी। कोई भी घर में नहीं बैठ रहा, सब लोग फैमिली को छोड़कर, जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ ये सब लोगों को हम सैल्यूट करते हैं कि जो डॉक्टर्स या पुलिस डिपार्टमेंट या डीसी जबान जो भी हमारे कर रहे हैं, तो हमारी संस्थाएं जो है वो भी घर में नहीं जी। बैठी। तो उसके बाद क्या किया हमने कि जैसे इतने मेंबर हैं, तो हमारे पास, मैं एक डाटा बताना चाहता हूँ शर्मा जी, जो हमारा जो हर महीने का जो हमारा जो खर्चे होते थे, जो हम काम कर रहे थे, उसमें से सबसे बड़ी जो विडो पेंशन है हमारी, जो 11.5 पौने 12,000 के करीब हमारी विडोज हैं, जिनको हम पेंशन देते हैं हर महीने की, पिछले 8 साल से दे रहे हैं। सेकंड जो था हमारा 4,000 के करीब हमारे वो पेशेंट हैं, चाहे वो डायलिसिस के पेशेंट है, चाहे वो कैंसर के पेशेंट है, तो उन पेशेंट को जो हम 1,000 से लेकर 4,000 रुपये महीना जो हर दवाई के पैसे देते हैं हर महीने। अच्छा, वो जो लोग हैं वो सब दिहाड़ीदार लोग हैं, इतने बहुत अमीर नहीं है। थर्ड जो हमारा पोर्शन था वो था कि 8,000 के करीब हमने बच्चे जो अडॉप्ट किए हुए हैं, वो सब गांव की लड़कियां या लड़के हैं, उनके पेरेंट्स भी इतने मतलब इतने अमीर नहीं है कि जो उनको बच्चों को एजुकेशन दे सकते, तो हमने उनको भी स्कॉलरशिप लगाई हुई थी। सो इस सब मिलाकर 22-23,000 जो फैमिली ऐसी बन जाती थी जिनका हमारे पास डाटा था, और उसके हमारे पास टेलीफोन नंबर्स हैं। तो पहले हमने वो बांटा सारा, सबको हमने राशन जो है 5 दिन के अंदर अंदर हमने सभी घर में राशन पहुंचा दिया। मैंने इस तरीके से किया कि जैसे 40 मेंबर है हमारे या 30 मेंबर है ना, तो एक मेंबर के पास हमारा टोटल देखा जाए तो सिर्फ 25-30 फैमिली का राशन उनके पास आया एक मेंबर के पास। तो सिस्टम ये रखा कि हम कहीं ट्रॉली भर के नहीं गए, किसी स्लम एरिया में नहीं गए, किसी लेबर में नहीं गए कि उनको जाके हम राशन बांटना शुरू कर दें, ऐसा कि ये 2 ले लो, 4 किलो ले लो, ऐसा नहीं किया हमने। हमने एक किट तैयार की प्रॉपर, जिसमें 19 किलो जो हमारा सामान आता है, जिसमें राशन सामग्री आती है। जैसे 10 किलो आटा हो गया, 3 किलो चावल, 3 किलो खंड हो गई हमारी, 2.5 किलो दाल हो गई, और 300 ग्राम चाय की पत्ती हो गई। तो ये हमने पैकेट पूरे हमारे बने, जिस फैमिली को देना है उनको 4-5 मेंबर के लिए 1 महीने का ये राशन है, जो तो 1 महीना उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये पूरे किए। उसके बाद प्रशासन के साथ जो था, उनसे 15-20% जो हमारा राशन था, हमने उनसे भी नंबर लिए कि कौन-कौन सी लिस्टें आपके पास बनी हुई है, तो उनको राशन देना शुरू किया। थर्ड जो हमारा था कि कुछ ऐसे लोग थे जो पहले महीने हमारे पास नहीं आए, लेकिन मई मंथ की जब हमारी खेप शुरू हुई है, अभी जो हमने मई भी हमने कंप्लीट कर दिया अभी। पहले उसमें हमारा गया था नियर अबाउट 370-380 टन जो हमारा राशन था, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस महीने जो हमारा राशन है वो तकरीबन 500 टन के करीब हमारा पहुंच गया, जो हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। सिर्फ जे.एंड.के श्रीनगर हमारा रहता है, उसकी कल जो हमारी गाड़ियां हैं वो कल जम्मू है वहाँ, और उधर से श्रीनगर की तरफ से ये 1500 फैमिली का राशन जो वो हमारा चला जाएगा। तो हर मेंबर के पास, जो मैंने बताया कि उसको कोई राशन नहीं है, ये नहीं कि तुमने एक दिन में जाके सारा राशन बांटना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी गाड़ी में 5-5 6-6 जो वो किटें पड़ी हुई हैं, तो आराम से वो फ़ोन करता है और ये बोलता है कि ये हम आइए अपना राशन ले लो, और उसको वो पैकेट जो है राशन दे दिया जाता है। इस बार जो हमारे पास मई मंथ में जो हमारा बढ़ गया बजट काफ़ी, तो तकरीबन इस बार जो मैंने दिया है 1 करोड़ 60 लाख का हमारा जो राशन है, वो बाँटा जा चुका है अभी तक। तो इसमें कुछ 3,500 के करीब वो लोग हमारे पास आए हैं जो लोअर मिडल क्लास, जो कह सकते हैं मिडल क्लास भी हैं, जिनके पास गाड़ियाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ भी हैं उनके पास, लेकिन 2 महीने के बाद अभी उनको जब सैलरी नहीं मिली, उनके पास बिज़नेस नहीं है, छोटे जैसे 3 व्हीलर वाले हो गए, हमारे रिक्शा चालक हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, जो छोटी-छोटी रेहड़ी लगाते थे, या छोटे दुकानदार हो गए, तो उनके पास राशन की कमी हुई, और लेकिन वो लोग माँग भी नहीं सकते थे, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो ये राशन थोड़ी माँगने जाएँगे। तो मीडिया के माध्यम से मेरे पास ये लिस्टें जो हैं 3600 3,600 के करीब वो लिस्टें आई मेरे पास। तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सारा, लेकिन उसमें हमारा क्या था कि हमारा आदमी गया, उनके घर में जाके राशन दे के आ गया, कोई फ़ोटो नहीं किसी की खींचनी, किसी को वो शर्म महसूस करते हैं कि कभी उन्होंने माँगा ही नहीं किसी से, लेकिन आज ऐसी नौबत स्वाभाविक आ है। गई कि राशन मिल गया तो वह रह नहीं सकते। तो ऐसे जो कुछ थे, इस बार हमारे कोई 42,000 फैमिली जो हमने कवर कर दी अभी तक, और अगला मंथ बिना जो है उसमें हर महीने हमारे जो 10-10, 15-15 हज़ार जो है वो फैमिलीज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसे सिगली का फैमिली का था इधर एमपी में, तो इससे भोपाल आपका में। बजट अपसेट हुआ है? आपका बजट जो है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि विडो पेंशन भी चलती है, बच्चियों की पढ़ाई भी चल रही है, और बाकी आप और जगह भी आप जो है सुविधाएं हर महीने के हिसाब से आप बंदोबस्त कराते हैं। तो अब जो कोरोना का बजट करके जो आप राशन की बात करें या बाकी व्यवस्था, जो पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क जो आप सारा इनको मुहैया करा रहे हैं लोगों को, जरूरतमंदों को, तो उससे आपके जो जो एक एनुअल बजट है
जो सालाना बजट है आपका ट्रस्ट का, तो उसमें कोई इसका क्या असर है और कैसे आपने उसको कैसे व्यवस्था कैसे बना के रखी है, संतुलन? नहीं शर्मा, ऐसा था कि जो हमारा बजट मंथली पहले बना, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया हर महीने का हमारा बजट है। सो उसको नहीं मैंने टच किया, क्योंकि अगर हम उनकी पेंशन रोक देंगे, जिनको हम मेडिसिन के दे रहे हैं पैसे, उनकी मेडिसिन रोक वो देंगे, काम तो वो अपना तो वैसे चलता ही रहा खत्म। अपनी जगह। तो वो तो हम नहीं रोक सकते थे, उसको हमने कंटिन्यू जी। रखा है ऐसे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन ये जरूर है कि इसके जो कोरोना वायरस था, इसके लिए जो बजट हमने पहले 6 करोड़ बजट रखा, लेकिन बात नहीं बननी थी क्योंकि ये लंबा चलेगा। तो अभी हमारे ट्रस्ट ने जो फाइनल किया है, 20 करोड़ का हमारा बजट सिर्फ कोरोना वायरस के लिए, इसको फाइट करने के लिए है। उसमें से जैसे मैंने बताया कि 1 महीने का हमारा 1.5 करोड़ के करीब जो है वो राशन, जो हमारा राशन सामग्री हम दे रहे हैं, तो 6 महीने का हम रख कर चले हैं। क्योंकि मैं जो चला हूँ कि सितंबर तक का जो मेरे ऑर्डर दिए हुए हैं, अभी हमारा अप्रैल मई निकल गया, अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने जो है वो हमने राशन देना है। और जिसको हम राशन दे रहे हैं उसको साथ बता रहे हैं कि भैया आप किसी से मांगने मत जाओ, बाहर मत जाओ, ये जो राशन है हर महीने इस डेट को आपके घर में पहुंच जाएगा। सो मतलब इतना सिस्टमेटिकली काम किया कि कोई ज्यादा लोड भी नहीं पड़ा अपने ऊपर। तो ये भी एक राशन सोशल ऐसे सिक्योरिटी आपने करते दी हुए। है उनको तसल्ली, ये बहुत बड़ी तसल्ली है, ताकि कम से जी। कम उसको इस बात की चिंता नहीं है खाने पीने की कि 2 वक्त की रोटी जो है वो बढ़िया से, मतलब कुछ महीने जब तक ये महामारी का दौर चलता रहेगा, क्योंकि जब तक कोई इसका इंजेक्शन नहीं आ जाता या इसका रोकथाम नहीं आ जाता सामने, तो ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आपका तसल्ली देना, आपके ट्रस्ट का तसल्ली देना, आगे बढ़कर आकर उन्हें एक ऐसा जो है सहयोग देना, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और देखिए शर्मा आपकी जी। इस बात से, जी 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 जी। शर्मा जी, ये जी बहुत बोलिए। जरूरी था। देखो सिर्फ तसल्ली ही नहीं है, उनको पता है कि अगर ट्रस्ट ने बोल दिया, हमारा इतना विश्वास बना हुआ है सरबत के भले ट्रस्ट का, उनको पता है कि अगर हमने बोल दिया कि इस डेट को आपको राशन अगले महीने का मिलेगा, तो इट मीन मिलेगा। देखो मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है अभी 2-3 महीने और ये महामारी चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी देखो मई महीना गया, जून भी जाएगा, जुलाई भी जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 3-4 महीने जो है फिर लग जाएंगे अपने को सेटल डाउन होते हुए। छोटे बिजनेसमैन है, जॉब जा चुकी हैं लोगों की, इतना तो नहीं कि इतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा लोड पड़ने वाला है, जैसे मैं दुबई की बात करूं, यूएई से जो इतने लोग, जॉब चलेगी, सब लोगों की कंपनियां बंद हो गई हैं, तो वो लोग सब वापस इंडिया ही आ रहे हैं। तो वो भी इंडिया में पंजाब के लोग ज्यादा हैं, तो वो भी लोड पड़ने वाला है अपने ऊपर, उनको भी आते हुए जॉब तो मिलेगी नहीं किसी को भी। सो ये आगे जो 3-4 महीने हैं वो बहुत बहुत खराब है, इतने मतलब कि ईजी नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाएगी हम सब के लिए कि दोबारा फिर हम सेटल डाउन हुए। इसलिए मैंने सितंबर तक का जो महीना है वो मैंने राशन सामग्री के लिए चुना है। उसके आगे अगर जरूरत पड़ती है तो फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके आगे उसको बढ़ाएंगे, आगे तक दिसंबर तक लेके जाएंगे। लेकिन सितंबर तक के हमने ऑर्डर सब दिए हुए हैं। जी एक जी यहाँ मैं और बताना चाहता हूँ शर्मा जी, जैसे आपने बात की ना कि हमारा बजट कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये बजट हमने सेपरेट रखा हुआ है। क्योंकि पैसा देखो, किसी को पता नहीं आज किसके ऊपर क्या हो जाना है। मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पता नहीं 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मेरे साथ क्या हो जाना है, कुछ नहीं पता ना। इसलिए ये टाइम ऐसा है कि अपने को पैसा नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि यार जो हमारे पास है, जो हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ कि जिसके पास भी है उसको चाहिए कि यार अभी ये लगा दो, अभी जो ये सेवा कर रहे हैं, ये सेवा आपके साथ जानी है और कुछ नहीं जाना। तो ये मौका मिला, वाहिगुरु ने दिया मौका कि अभी भैया आप दसवंध निकालो, या जितने परसेंट निकाल सकते हो इस काम में आप जरूर लगाओ। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, देखो एक जो ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन कोई 98 यूनिट मैंने लगाए हुए हैं पंजाब में डायलिसिस के, किडनी पेशेंट के लिए। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आया, हमारा कोई भी सेंटर जो है अभी तक बंद नहीं हुआ। जहाँ 2 शिफ्टें चलती थी अभी 3 शिफ्टें चल रही हैं, जहाँ 3 शिफ्टें थी वहाँ 4 शिफ्टें कर दी हमने, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल्स बंद होने से उनको सेंटर बना दिया गया है कईयों को, तो वो जो डायलिसिस बंद हो गया वो भी लोड बढ़ गया। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जैसे अपने हॉस्पिटल बंद कर दिए, तो वो भी डायलिसिस नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो जो हमारी जितनी मशीन्स लगी थी उसके ऊपर लोड पड़ना शुरू हो गया। लेकिन वही बात कि 2 महीने पहले ही मैंने 5,000 जो डायलाइजर किट है उसका ऑर्डर दे दिया था कि डायलाइजर किट नहीं खत्म होनी चाहिए, कि हो सकता मौके में मार्केट से ना मिले, और वही बात हुई है, उसकी शॉर्टेज आ गई। लेकिन मेरे पास पड़ी थी, अभी जहाँ भी अपने जितने पेशेंट हैं उन सबको डायलाइजर किट जो बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में मिल रही है। क्योंकि ये भी मेरा सोचना था कि अगर हम डायलिसिस बंद हो गए तो देखो कोरोना से तो जो आदमी मरेंगे वो मरेंगे, उनकी गिनती कोई ज़्यादा नहीं होने वाली। लेकिन ये जो आदमी डायलिसिस करा रहे हैं जो हफ्ते में 2 बार, अगर इनको 15 दिन या 10 दिन डायलिसिस नहीं कराया तो इनकी जो मौत है वो तो कन्फर्म है, और वो कितनी गिनती में वो लोग मरेंगे। तो इसलिए मैंने ये जो जो फैसिलिटीज़ लोगों को दे रहा था वो मैंने ऐसे कंटिन्यू रखी हुई है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया मेरा। बिल्कुल, बहुत खूब डॉक्टर ब्रॉय। और आपकी इन बातों को सुनकर
मुझे बड़ी प्रेरणा मिल रही है और मैं उस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए कुछ चंद पंक्तियां बोलूंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जिस शायर ने भी लिखी थी और बोली थी, तो वो बिल्कुल आप पे सही बैठती हैं, क्योंकि आपके साथ जिस तरह से आप प्रेरणा देते हैं और एक आप हमेशा जो है, आज का नहीं है, ये कई सालों से आपके साथ ये बात रही है कि आप जहां भी गए हैं आपने अपनी पहचान बनाई है और आपके परिचय को आप किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। और जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपने चीज जिस चीज का भी आपने बेड़ा उठाया है, तो उसको आपने एक मील का पत्थर बना दिया है। और यही बात है कि अब जो है ये भी चर्चा चलने लगी है कि आपने जैसे बात करी डॉक्टर ओबरॉय की कोरोना योद्धाओं को नमन करना है, और आपने कोरोना योद्धाओं का वर्णन करा कि डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और तमाम वो लोग जो इस समय अपनी जान जोखिम में डाल के ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि कैसे देश हमारा उभरे इस कोरोना काल से और कैसे हम मुंह तोड़ जवाब दे पाए कोरोना को। तो मैं साथ में एक बात बोलना चाहूंगा, और देखिए कई लोग ये इस समय बोलने शुरू हो गए हैं कि जो गैर सरकारी संस्थान है और कुछ मतलब इसमें जो बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपने आप एक अनोखी नजीर पेश करी है, तो वो भी उनको भी कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में डाला जाए। क्योंकि आप जैसे खुद आपका खुद एक जीता जागता आप एक उदाहरण है कि जिस तरह से आप अपना डेरा लगा के यहाँ पर बैठे हैं पंजाब में, और आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं कि कैसे एक आम आदमी उसका उनका दर्द पहचान रहे हैं और उनके पास वो व्यवस्था का बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो इस समय बहुत ही जरूरी है। अब मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आप कैसे, क्योंकि आपको एक बहुत ही बड़े एक आपको कई अवार्ड से सम्मानित करा गया है आपके इस बड़े ही बेहतरीन आपके इस करियर में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको फिलैंथ्रोपी में अवार्ड दिया गया था, एक बड़ा ही खास, जो दुनिया का पहला अवार्ड था कि जो जिसको बोलते हैं कौसा ग्रैंड पीएचडी इन फिलैंथ्रोपी, उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान है कि जो किसी ने ऐसा जिसको कीर्तिमान ऐसे ऐसे अवार्ड से सम्मानित नहीं करा गया है। शर्मा, ये अवार्ड तो अगर गिनती करने लगो तो बहुत अवार्ड बन जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे अवार्ड मिले हैं। तो मेरे को तो खैर पता भी नहीं था इन बातों का, क्योंकि जिस टाइम ये 17 लोगों की बात आई थी ना कि 17 लोगों की फांसी माफ कराई गई, तो वो न्यूज़ इतनी स्प्रेड हुई थी पूरे वर्ल्ड में कि एक आदमी का मर्डर किया गया और 17 लोगों को फांसी सुना दी गई। और फिर उसमें मैंने खर्च किया था $1.4 मिलियन US मैंने पे की थी ब्लड मनी। तो वो जब न्यूज़ गई तो फिर मेरे को कॉन्टैक्ट लोगों ने करना शुरू किया। जैसे मैंने सिख ऑफ द ईयर मेरे को अवार्ड मिल गया, लंदन से मिला, वो भी एक ही मिलता है साल में। तो ऐसे जैसे आपने पीएचडी की बात की है, तो काफ़ी जो मेरे को वहाँ यूएनओ में मिला, अपना और आप काफ़ी पहले अवार्ड सिख जो है। कम्युनिटी से हैं, पहले पूरे वर्ल्ड में पहले सिख कम्युनिटी से आप हैं। वो आप शख्सियत हैं जो यूरोपियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान में। जी 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 बिल्कुल। उस मेरे को आप पहले कौंसल 5 जनरल साल भी के हैं लिए इंडिया के। जी पहले 5 साल के लिए मेरे को चुना गया था, 10 साल और बढ़ा दिए, अभी 15 साल के लिए मेरे को किया गया। तो मैं वो भी चलो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ है शर्मा जी। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ दिल की ना जी, कि ये अवार्ड तो आते रहते हैं जी, तो मैं इनको अहमियत देता भी नहीं अवार्ड्स को। काम करना चाहिए। और मेरे को तो सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वही है कि जब मैं किसी की फांसी कराकर माफ़ करा के उस बच्चे को उसकी माँ प्यों के सामने, उनके बच्चों के साथ, उसकी भाई बहनों के साथ उनको सुपुर्द करता हूँ ना जी, और वो जो सीन होता है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेरे लिए। इतने लोगों की अभी तक 109 लोग हैं जिनकी फांसी और जिनकी उम्र कैद की सज़ा जो है वो माफ़ हो चुकी है, और जो सब अपने अपने घरों में पहुँच चुके हैं। और शर्मा जी वही, जैसे हमारे ट्रस्ट का नाम ही ऐसा रखा गया कि सरबत का भला मीन्स सभी का भला। नानक नाम तो चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। सरबत का भला वेलफेयर मीन्स ऑफ सभी ऑल। का भला है, इसमें जी, कोई वेलफेयर ऑफ ऊंच ऑल, नीच सबका नहीं भला। है, कोई जात पात नहीं देखी जाती। सो जी यही मैं बताना चाहता हूँ कि 109 लोग जो थे उनमें से अकेले पंजाब के नहीं है, कुछ लोग पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यूपी बिहार के हैं, इसके अलावा बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान के 14 लोग थे। तो ऐसे है। अभी अभी मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल मैंने ब्लड मनी पे की थी, कुछ लोगों का केस चल रहा था, 2 मर्डर हुए थे पंजाब के। उसमें 14 लोग थे, 2 पाकिस्तान के थे और 12 लोग जो पंजाब के थे, 11 पंजाब के, एक कुरुक्षेत्र हरियाणा का था।
और उनकी फांसी माफ होगी, सब कुछ हो गया। और मेरे को आज ही फोन आया वहां से कि उन लोगों को आउट जेल में ले आया उनको, और आने वाले 3-4 दिनों में वो लोग अपने अपने घरों में आ जाएंगे। एक तो वो काम हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा जो सुकून मिलता है अपने मेरे को, जो शांति मिलती है, वो सुकून मिलता है मेरे को, वो होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है वहाँ, तो उनकी डेड बॉडी लेकर तो उनके घर वालों के सुपुर्द करनी और वहाँ उनका संस्कार कराना। अभी तक शर्मा जी अंतिम संस्कार सारे 163 रीति रिवाज के साथ। जी 163 अभी तक डेड बॉडीज जो हैं वो मैं ला चुका हूँ बाहर से ले जाके। तो यहाँ इनका संस्कार, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ अभी भी एक तो आदमी है, जैसे कल भी आ गई डेड बॉडीज, 2-3 दिन पहले भी आई थी कुछ। तो अभी वहाँ कोरोना का भी चला था, कोरोना से डेथ होती है उसका संस्कार तो वहीं कर दिया जाता है, वो डेड बॉडी नहीं थे। लेकिन कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया या हार्ट अटैक हो गया या किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उन डेड बॉडीज अभी भी जो है यूएई गवर्नमेंट से वो इंडिया भेजी जाती है। बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब, अपने आप में ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी अपने आप में कोई कीर्तिमान होगा कि जिस तरह से आपने आंकड़े गिनाए कि कितने आप लोगों को आपने रिहा कराया, अभी तक 109 का आंकड़ा आपने बताया, और आपने 163 आपने बताया कि जो डेड बॉडीज आप सफल हुए हिंदुस्तान वापस लाने में, फिर उनका रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाया। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, और इससे बड़ा मानवता का संदेश कोई नहीं हो सकता कि जब आप उनके परिवारजनों के साथ, चाहे वो उनकी डेड बॉडी आती है, जो भी है, वो भी उत्सुक रहते हैं, देखना चाहते हैं, लालयत रहते हैं कि कम से कम अंतिम दर्शन हो जाएं, तो वो भी आप एक माध्यम बने, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवता का आपने संदेश दिया है। और अभी आप जैसे कोरोना काल चल रहा है, अभी असमंजस की स्थिति है, कुछ पता नहीं है कि अभी लॉकडाउन कितना और चले। तो पंजाब की अगर हम बात करें, खासतौर पे पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो अभी आपको क्या चुनौतियां सामने नजर आती हैं? एक तो आपने बताया कि जैसे अभी आपने राशन पानी की जो बाकी व्यवस्था है खाने पीने की, वो आपने कम से कम सुनिश्चित कर रखी है अगले कुछ महीनों के लिए। तो बाकी अभी चुनौतियां आपको क्या नजर आती हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया कि अभी दुबई से भी लोग घर वापसी करेंगे, तो उनके लिए कैसे प्रबंध कराए जाएंगे? और क्या आप सरकार के साथ मिलके, अगर आप पंजाब सरकार की बात करें, तो तालमेल कैसे बना के रखा हुआ है जो बाकी एनजीओज हैं, गैर सरकारी संस्थान हैं, और सरकार से क्या मदद मिल रही है आपको? शर्मा जी, ऐसे देखो, सरकार में क्या कि जैसे हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, तो 26 हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सारे टच में हम आपस में सब, जैसे जितने हमारे डीसी साहबान हैं या एसएसपी साहबान हैं, उनके हम टच में हैं। जो भी उनको हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि उनको इतना पता है कि अगर कोई भी चीज़ चाहिए, अगर वो थ्रू गवर्नमेंट करते हैं तो उसमें कुछ टाइम भी लगता है, क्योंकि पहले उन्होंने टेंडर लेने हैं, फिर उन्होंने पेमेंट करनी है, ये करना तो टाइम भी लगता है। लेकिन ट्रस्ट का क्या है कि ट्रस्ट का अभी बोलेंगे तो 2 घंटे में हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम तालमेल हमारा पूरा, हम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी आज जो हमारे पंजाब में, तो आज का दिन लास्ट था, अभी कर्फ्यू खत्म हो गया 7 बजे, तो लेकिन लॉकडाउन तो अभी हमारा चलेगा मेरे ख्याल में, अभी 31 मई तक तो अभी हो ही गया, ऑलरेडी कर दिया। लेकिन ये आगे भी थोड़ा हो सकता है, आगे भी चलेगा। तो लोगों को वैसे थोड़ी बहुत समझ भी आ गई, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग सब घरों में बैठे हुए हैं, तो आते तो हमारी चेंज हो ही रही हैं। दूसरा था कि जैसे जब हमारे प्रवासी मजदूर थे, इन्होंने वापस जाना शुरू किया, लाखों की गिनती में इनकी आगे रेल में चली, सब कुछ चला, लोग जा भी रहे हैं वापस सारे। तो उससे पहले था कि पंजाब में फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि जितने हम पंजाबी लोग हैं, हम थोड़े आराम परस्त हो गए थे कि पता है कि यार सबके घरों में 3-3 4-4 नौकर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो खेती भैया कर रहे हैं सारे। तो जो भी काम था वो हम डिपेंड हो गए थे उनके ऊपर। तो अभी क्या, लाखों जाने के बाद था कि शायद फसल नहीं कटेगी या कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइम पे फसल भी कट गई, कमाईने हमारी बाहर गई हुई थी, कोई महाराष्ट्र गई थी, कोई कहीं गई हुई थी, वापस पूरी नहीं आ पाई कोरोना की वजह से। तो लोग जो जिन्होंने कभी फसल खुद नहीं काटी थी, उन परिवारों ने भी खुद काटी। उनको पता था कि आगे मौसम भी खराब होता जा रहा है, अगर हम टाइम पे कटाई नहीं करेंगे, कणक मंडी में नहीं भेजेंगे, तो कणक उठनी नहीं हमारी, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए उनने अपने आप अभी काम करने की, जो पहले आप ही करते थे ना, बाद में डिपेंड हो गए इनके ऊपर, अभी उन्होंने आप किया। तो अभी ये था कि अभी भैया साहब चले गए बाहर, लाखों की गिनती में चले गए। अभी आगे हमारा चावल का आ गया, सिन्ना में जोना लगना है अभी हमारा, तो उसकी बिजाई के लिए भैया ही थे। लेकिन मेरे को पता है कि वो भी निकल जाना है, कोई आदमी डिपेंड नहीं है। हम सबको आदत पड़ गई है अभी, जितनी हमारी लेडीज घर की हैं, अभी खुद ही खाना बना रही हैं, खुद ही कपड़े धो रही हैं, खुद ही सफाइयाँ कर रही हैं। तो इसी तरीके से ये आदतें अच्छी पड़ गई हैं अपने को।
तो कुछ हम मैं अभी तो पूरे सिस्टम में आ जाएंगे मेरे ख्याल में। वातावरण जी इतना अच्छा हो गया। देखो अभी यहाँ शर्मा जी, जी जब सर्वे किया गया कि अभी कितनी डेथ हो रही है, शमशान घाट में भी जैसे सर्वे किया, पूछा गया अभी कितनी डेड बॉडीज आ रही हैं, तो सबने ये बताया कि जैसे 40-50 डेड बॉडी आती थी, अभी सिर्फ 12-13 डेड बॉडीज आ रही हैं। उनमें भी कोरोना की है, चलो कुछ भी है। देखो ये एक तो बात है कि एक्सीडेंटल खत्म हो गए, क्योंकि हमारे जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू लग गया, सब कुछ जी हो गया, तो गाड़ियां, सड़कें सारी सुनी जी पड़ी हुई हैं, गाड़ियां नहीं चलेंगी जी तो एक्सीडेंट नहीं हुए। दूसरा ये भी हुआ है कि घर में रहने से क्या है कि कोई बाहर का खाना नहीं मिला किसी को भी, अभी घर में बनाते हैं, घर में खाते हैं, साफ वातावरण है, तो उससे राइट बीमारियां वैसे ही खत्म हो गई। कईयों के तो बीपी हाई थे, बीपी नॉर्मल हो गए उनके, शुगर लोगों की खत्म हो गई। तो बीमारियां खत्म। अभी जिनके घुटने दुखते थे, अभी उनसे पूछो, बोलते नहीं यार हम तो ठीक हो गए हैं, बिल्कुल 2 महीने में ठीक हो गए हैं, क्योंकि बहुत कुछ मिल गया, साफ वातावरण मिल गया। अगर आप बाहर देखो तो आपको आसमान बिल्कुल साफ नजर आएगा। अब लॉन में जाओ, घूमो, अच्छे अच्छे सुबह सांस लो, तो हवा जो फ्रेश हवा अपने को मिल रही है। तो काफी जन ये चेंजेस आ रही हैं, लेकिन मुश्किल का सामना अपने को करना पड़ेगा जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कर्फ्यू खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो लोगों में ये भागदौड़ जरूर मचेगी कि अभी हम करें क्या। देखो कोई भी इंसान है 1-2-3 महीने तो निकाल लेता है, लेकिन अगर उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिजनेसमैन भी एकदम देखा जाए तो अगर पैसा ही नहीं है किसी के पास तो वो परचेज क्या करेगा। देखो इसका इफेक्ट अभी अभी कोई गाड़ी नहीं बिकेगी। अगर गाड़ी जी लोग चलाएंगे गाड़ियां, परचेज नई गाड़ी तो करेंगे नहीं, शोरूम सारे बंद पड़े हैं। तो फर्नीचर की दुकान पे जाओ तो बड़े बड़े शोरूम हैं, जो बड़े जो थे तो उन अब पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। सो बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ा है। फाइनेंशियली तो देखो जो है फाइनेंशियल क्राइसिस तो वो आने ही आने हैं वो। जी, बिल्कुल स्वाभाविक है। और जैसे आपने उपलब्धियां गिनाई आपने ट्रस्ट की कि कैसे कैसे व्यवस्था कराई है और कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि राशन पानी सबको मिले। तो साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके ट्रस्ट ने और आपने खुद एक व्यक्तिगत तौर पर कैसे जागरूकता आपने अपना जागरूकता अभियान चलाया ताकि लोगों में जागरूकता आए कि जितने लॉकडाउन के नियम हैं उनका बिल्कुल नियमों का पालन करा जाए और एक अनुशासित होकर रहें, क्योंकि पंजाब में लोग आपको एक आदर्श मानते हैं और आपकी बात वो भली भांति समझते हैं। अगर आप उनको कुछ संदेश देंगे तो वो उसका बिल्कुल सही तरीके से अनुपालन करेंगे। तो आपके ट्रस्ट ने और आप अगर व्यक्तिगत तौर पे खुद अपना बताएं तो वो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या अभियान आपने चलाए यहाँ पर ताकि देखो लोग शर्मा, घरों में रहें। सबसे पहले तो ये अपने जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर, हमने वहां से स्टार्ट किया। टीवी में इतनी न्यूज आती है हमारी, हम दिखाते हैं कि जैसे राशन हमने ले लिया लेकिन उसकी पैकिंग करनी है। अभी 40,000 पैकेट बनाने हैं हमने, तो उसमें टाइम लगता है। तो हमारे अपने जो सेवादार हैं वो वही करेंगे, लेकिन उन पर दिखाया हमने टीवी में कि कैसे हमने गैप रखा हुआ है, डिस्टेंस रखा हुआ है, 1-1 1.5 मीटर में लोग बैठे हैं, ग्लोव्स डाले हुए हैं और मास्क लाए हुए हैं, तो वो दूरी भी बनाई रखी हमने। और इस तरीके से सारी जो सफाई से हमारी जो सारे पैकेट हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का देखो, अगर 40-45 हज़ार बोलूँ तो 45,000 तो हमारे पैकेट चीनी के बन गए, राइस के बन गए, आटा पैक होके आएगा, दाल के बन गए। सो देखा जाए तो लाखों पैकेट हैं, वो सब बनाए, डिस्टेंस बनाए रखा। दूसरा हमारे कुछ हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में जैसे हमारे सिलाई सेंटर चलते थे, तो सिलाई सेंटर जैसे ये शुरू हुआ तो हमने बंद कर दिए, लेकिन 5-6 दिन के बाद सिलाई सेंटर हमने फिर दोबारा स्टार्ट किया। घरों में उनको कपड़ा लेके दिया, कपड़ा लेके उनको बोला भैया अभी आप सिलाई सेंटर में, मेरे पास कोई 2200-2300 सेंटरों में सिलाई सीख रही थी, टीचर थे उनके, तो उनको कपड़ा दिया गया कि आप मास्क तैयार करो, क्योंकि जो मार्केट में मास्क लेते हैं वो वन टाइम यूज़ है, हम करेंगे, लाएंगे, फेंक देंगे। लेकिन ये जो कपड़े के, अच्छे कपड़े के जो हमने बनाए हैं, वो 2-3 बार उनको हम धो भी सकते हैं, धो के उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो बनाए, वो हमने, जैसे अभी कणकों की वाਢी होनी थी तो वहाँ हमने दिए, मंडियों में इतने मास्क दिए हमने। अभी ये जो लेबर गई है जो यहाँ से, तो स्टेशनों पे हमारे जो थे उन्होंने भी मास्क दिए। दूसरा हमने बना के रखे हुए थे, इतने इतने बोर्ड लेके हमारे लोग खड़े होते थे, वहां लिखा था कि जो जो सरकार ने जो भी सेक्शन दिए, जो उन्होंने दिया कि आपस में दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करें, सैनिटाइजर यूज करें, तो ये सब जो हमने किया। एक हमने जो ये अभियान सबसे पहले शुरू किया जब इतना कोरोना का नहीं था, कर्फ्यू नहीं लगा था, तो उस टाइम हमने टैंकर बनाए थे। टैंकर के पीछे टूटियां लगी हुई थी हमारे पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्टों में। हमने 3-3 4-4 जो टैंकर पानी के रखे, साफ पानी के, पीछे 4 टूटियां लगी हुई हैं, उसके अंदर साबुन रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है सारा। सिर्फ ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, भैया आप हाथ धोवो,
तो लोगों ने हाथ धोने शुरू किए, तो उससे भी एक आदत पड़ गई। लेकिन जब ये कर्फ्यू वगैरह लग गया तो अपने को वो बंद करने पड़े। लेकिन अभी कर्फ्यू खुल गया तो लेकिन फिर वही जो हमारे टैंकर्स हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो यही हमने मैसेज सब तरफ यही दिया कि जो 3-4 ये चीज़ें थी बस वो नॉर्मल है कि ये करें हम। जी। तो अभी जैसे आपने पहले बात करी थी आत्मनिर्भर की, कि अब क्योंकि अगर घर में काम करने वाले लोग नहीं होंगे लॉकडाउन करके, तो लोगों को जो आदत भूल गए थे लोग काम करने की, कम से कम उन्होंने खुद करा है शुरू, एक पहल करी है। और प्रधानमंत्री ने भी बात करी, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करी, उसके तहत कुछ आर्थिक घोषणाएं भी हुई हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि जैसे अब प्रधानमंत्री ने बात की स्वदेशी की, कि भाई आप मेक इन इंडिया को तवज्जो दें, और ताकि इधर रोजगार भी लोगों को काम मिले, और आपकी जो है अर्थव्यवस्था जो बिखरी हुई है वो भी पटरी पे दोबारा आए। तो उस करके अगर आप ये बताएं हमारे को कि कैसे अभी जो सर्वोदय भला ट्रस्ट है वो कैसे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहल कर रहा है इस समय, कैसे वो देखो चाह रहा है कि ताकि लोग आत्मनिर्भर हों। देखो शर्मा जी, ऐसा है बिल्कुल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि देखो इंडिया किसी तरफ से कम नहीं है, स्पेशली इंडस्ट्री में तो हम कम नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्री में हम कम नहीं है। कुछ भी आइटम है जो हम बाहर से परचेज करते हैं यहाँ बन सकती है। बहुत अच्छा है ये किया कि उन्होंने कि बजाय हम बाहर से कुछ खरीदें, हम अपने यहाँ ही क्यों ना हम इसकी प्रोडक्शन यहाँ ही बढ़ाएं और इसको हम फिर एक्सपोर्ट करें। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को जो चांसेस लगता है कि अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो आगे जो जो बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं है, ये सब बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम किसी से पीछे नहीं है। कोई भी आइटम अपने को चाहिए, जी सिर्फ एक पंजाब में तो मैं बता सकता हूँ कि लुधियाना एक हमारी ऐसी इंडस्ट्री है, कोई भी आइटम आप दे दो इनको और इनको 4 घंटे बाद वो आइटम जो बना के आपको रूबरू बिल्कुल आपको वो आइटम दे देंगे। तो वैसे भी मैं भी बात करता था तो मेरी भी सारा मैक्सिमम होती थी कि हम इंडिया का प्रोडक्ट जो वो ही बाहर लेके जाएं। कोई भी चीज़ कहीं से बनती थी लेकिन मैंने वो डेवलप जो इंडिया में ही की है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ये आइडिया प्रधानमंत्री जी का कि हम जो भी हमारी प्रोडक्शन है, जो भी हमने तैयार करना है, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी वो इंडिया में ही होनी चाहिए। सो बाहर से हम इम्पोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट के ऊपर आ जाए। तो हमारी अर्थव्यवस्था देखो टाइम जी शर्मा जी लगेगा इस बात का, इतना ईज़ी नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये साल तो निकल गया, इस साल में तो हम बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पाएँगे। कोशिशें हमारी सबकी जारी रहेंगी। हर आदमी ने देखो खाना खाना है, तो मेहनत तो हर लोग करेंगे, मेहनत तो हमको दोबारा से करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगले साल से हम आत्मनिर्भर हो जाएँगे और अपने को एक अच्छा जो अपने को ये लेसन मिला एक, अपने को पता लग गया कि नहीं भई हम कुछ भी नहीं है। देखो क्या-क्या कुदरत ने कोई टाइम थोड़ी हम्म, लगा जी, सबको घरों में बिठा दिया। पूरा वर्ल्ड घरों में हम्म। बैठ गया आकर, जिसको देखो वो मास्क ये लगा रखे हैं। आत्ममंथन करने का भी दौर है। हाँ, बस जी तो हाँ, बिल्कुल। तो इससे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखना चाहिए भी। दूसरा वैल्यू भी बता दी कि जी पैसे की, कि पैसे की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। मैं तो पहले भी कहता था कि ज़ीरो है। अभी बताओ हम घरों में बैठे हमारे खर्चे क्या हैं? कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है हमारे। सोचा जाए तो यही इतना ही हमारी ज़रूरत इतनी ही है, इसके ऊपर नहीं है। लेकिन हम लोग लगे जी हुए हैं कि नहीं हम करोड़ों कमा लें, इकट्ठा कर लें, पता नहीं जैसे हमने साथ ले जाना है। लेकिन इससे ये जो हमारा जो लॉकडाउन हुआ है, हम लोग घरों में बैठे हैं, इससे बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी, बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब गगन भी नीला दिखाई दे रहा है और हमारी नदियाँ भी बिल्कुल साफ़, कोई बिना प्रदूषण के, और बाहर अगर हम साँस भी ले रहे हैं तो खुल के साँस ले पा रहे हैं इस समय। कोई प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण की मात्रा बहुत कम है, और यही हमने अब सीख लेनी है कोरोना से, कि कैसे कहीं ज़रूर हमारे से कोई बहुत कहीं हम पीछे रह गए थे, कमी-पेशी थी, भूल थी हमारी, जिसको हमने सुधारना है ताकि प्रकृति की तरफ से ऐसी मार दोबारा ना आए। और भाई साहब आपने बहुत अच्छा कहा कि ये एक सुनहरा अवसर है, और हिंदुस्तान के पास कि आत्मनिर्भर तो बने ही, और साथ में फिर दोबारा एक विश्व गुरु बन के उभरे। और हिंदुस्तान को एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आप क्योंकि एक बहुत सफल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान वो दौर दोबारा आएगा? शर्मा जी, मेरा विश्वास है कि ज़रूर आएगा। देखो मैं तो छोटी-छोटी बात लेता हूँ कि जैसे यहाँ से सब जो जितने अपने प्रवासी मज़दूर थे तकरीबन चले गए हैं काफ़ी, 15-16 लाख थे। 10-11 लाख की रजिस्ट्रेशन हुई थी। वो भी जा रहे हैं, बाकी भी जा रहे हैं। देखा होगा आपने अभी कि लोग अगर गाड़ियाँ नहीं मिली, बसें नहीं आई तो वो पैदल ही चल पड़े, साइकिलों पे चढ़ पे।
वो सब लोग जा रहे हैं यहाँ से और हमारे लोग वापस आ रहे हैं, और जितने भी लोग हमारे बाहर से वापस आ रहे हैं वो इतनी मुश्किल से वापस आ रहे हैं, अभी मिन्नतें कर रहे हैं कि हम अपने वापस मुल्क पहुंच जाएं। और जहाँ पहले नहीं करते थे, यहाँ शर्म महसूस करते कि यहाँ काम नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन बाहर जाकर तो वो बर्तन भी साफ करते हैं, सब काम करते हैं, सफाइयाँ भी करते थे। तो मेरा लगता है कि अभी उनको एक मतलब कि एक उनको लेसन मिल चुका है, और आके यहाँ जो अपने पंजाब में अपना ही काम करेंगे, और पंजाब एक बार फिर जो इंडिया हमारा वो सोने की चिड़िया जरूर बनेगी। थोड़ी मेहनत की जरूरत है, वो मेहनत हम करेंगे। वही पहले मैंने बताया कि हमारे को सबक मिल गया अभी, तो अभी हम सब कुछ करेंगे यहाँ भी। जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है और आप बिल्कुल किसी भी सीमा ने आपको बांध के रखा नहीं, और जैसे कि पहले आपका जब परिचय दिया तो मैंने यही बात बोली कि मानवता ही आपका एक धर्म है, मानवता ही धर्म है आपका, वही आपकी पहचान है। तो जब नेपाल में भूकंप आया था और फिर कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ के जो आपने कार्य करे उसके बारे में थोड़ा सा आप आज हमसे थोड़ा वो बताइए जरा, वो क्या था, वो चुनौतियाँ क्या थी और क्या मेरी तो यही कोशिश होती है कि देखो कला पंजाब ही नहीं है, सब हमारे अपने लोग हैं। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, ट्रस्ट ने बनाया अपना, पहले मैंने पंजाब शुरू किया, फिर साथ में हिमाचल शुरू किया, फिर हरियाणा किया, फिर राजस्थान किया, JNK किया। अभी 9 स्टेटें हैं जो अपनी इंडिया की, 9 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं अभी, वही काम जो हम पंजाब में करते थे, तो वहाँ भी शुरू किए सारे। तो ऐसे नेपाल में जब हुआ था भूकंप आया तो सबसे पहले हम ही वहाँ पहुँचे थे। वहाँ गए, ऐसे गाँव में गए कि जहाँ कोई भी नहीं पहुँचा था, और ऐसे ऐसे गाँव देखे जहाँ 800-800 घर था, सिर्फ कोई भी घर नहीं बचा, 800 के 800 घर जो है वो डेड एरिया हो गए थे। तो फिर हमने जो वहाँ एक मुहिम शुरू की थी कि हम इनको इनके मकान दोबारा बना के देंगे। सर पहले तो राशन दिया उनको, सब कुछ किया, फिर हमने बोला नहीं मकान बना के देंगे। तो 2500 के करीब हमने जो है वो मकान वहाँ बना के दिए थे। तो उसमें हमने क्या किया था कि उनको बोला कि ये पड़ा सब कुछ, बारियाँ पड़ी, सब कुछ पड़ा, ये आप इकट्ठा करो भैया, अभी करो तो ऊपर हम छत डाल देंगे। सो जितने भी घर थे उनके ऊपर छत जो हमने डालकर तो उनको दोबारा फिर अपने अपने घरों में बसेरा किया। ऐसे श्रीनगर में हुआ था, जब श्रीनगर में हड़ आए थे तो हम सबसे पहले पहुंचे थे, पहला कपड़ा दिया, फिर खाना दिया उनको, उसके बाद मेडिसन के हमने लंगर लगा दिए कि इतनी मेडिसन हमने वहाँ भेज दी कि बिल्कुल फ्री ऑफ जा रही थी। वहाँ एयरलाइंस ने भी हमारी बहुत हेल्प की, चंडीगढ़ से जो हम मेडिसिन जाती थी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती थी, वो उसका कोई किराया नहीं देना पड़ता था, फ्री ऑफ कॉस्ट ये एयरलाइंस हमारी जो वहाँ लेके जाती थी। तो इस तरीके से काफ़ी काम किया। श्रीनगर जो JNK को अभी भी हमने छोड़ा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पंजाब में सारा ये राशन पानी गया या किटें गई, सब गई, तो ऐसे ही जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ भी हमने किट्स दी और सारा सामान वहाँ भी दिया। और श्रीनगर में भी 4 सरकारी हॉस्पिटल जो है तो उनको भी हमने ये जो सामग्री जो दी है ना, ये सारा चाहे वो N95 है, चाहे दूसरे मास्क है, चाहे सैनिटाइजर है, चाहे वो PPE किटें हैं, तो वहाँ भी हमने प्रोवाइड किया है। तो अभी राशन भी जो दिया तो वो भी हम वहाँ दे रहे हैं। देखो पुंछ में जा रहा है, रजौरी में जा रहा है हमारा, वहाँ बहुत लोग हैं, इतनी फैमिली की लिस्ट आई थी मेरे पास। तो अभी आज जो हमारी गई है वो पुंछ, रजौरी, जम्मू, और कल परसों हमारा जो श्रीनगर बारामूला साइड जो है वो वहाँ चल जाएगा सारा। सो कोशिश ये होती है कि हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच के जितनी हम सेवा कर सकते हैं हम लोग सेवा करें। एक बात में मानवता की कोई सीमा नहीं है, नहीं सीमा नहीं जहाँ है। तक ओबराय साहब की बात है, डॉक्टर ओबराय की बात आती है तो मानवता की कोई सीमा नहीं है, और मानवता किसी धर्म को देखता नहीं है, कोई जात देखता नहीं है, और बस ये मकसद होता है कि कैसे जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरी करी जाए और उनके चेहरे पे मुस्कान दोबारा, जो मुस्कान वो खो बैठे होते हैं उसको दोबारा वो एक हंसता हुआ चेहरा उनका दोबारा वो देख पाएं, वही आपका सबसे बड़ा इनाम है। और मैं ये जानना हाँ जी, देखो शर्मा जी, ऐसा है, एक जो सिख कौम है ना वो ऐसी है कि हमारे को गुरुओं से एक गुरुति मिली हुई, ऐसी एक शिक्षा ऐसी मिली हुई है कि हम किसी को भूखा नहीं देख सकते, किसी का दुख नहीं देख सकते। किसी को दुख में देखेंगे तो हम इतने भावुक हो जाते हैं कि फिर हम सबको जो हमारे पास है हम सब लगाने को तैयार हो जाते हैं। आज भी देखो वर्ल्ड में कहीं कुछ होता है तो सिख लोग पहले पहुंचते हैं वहाँ, लंगर हमारे पहले लगते हैं वहाँ, चाहे कोई भी कंट्री हो। अभी भी देखा आपने, देखो अभी गुरुद्वारा साहब, कोई दो राय नहीं है कि गुरुद्वारा आप कभी भी गुरुद्वारे चले जाएं, 24 घंटे कभी भी चले जाएं, आपको किसी भी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और वो हमेशा सेवादार वहां पर आपके सेवा के लिए हैं वहां पर। तो ये
इनको जितना नमन करा जाए वो कम है। बिल्कुल, बिल्कुल इसमें कोई दो राय लंगर नहीं है। शर्मा जी, लंगर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये नहीं पूछा जाता कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, या तू कौन है। जी, लंगर मीन्स जी, लंगर, कोई भी आ गया उसको लंगर मिलना ही मिलना। अभी देखो दिल्ली जी, में देख रहे हो आप, लाखों की गिनती में लंगर जो बंगला साहब से जा रहा है। श्रोमणी कमेटी ने भी किया, किसी भी गुरुद्वारे में राशन की वहाँ कमी नहीं आई कोई भी। थोड़ा महसूस होता था कि अभी क्या है कि अभी गोलक में पैसा नहीं आ रहा, संगत नहीं जा रही गुरुद्वारों में, तो कैसे चलेगा। लेकिन वो टाइम निकल गया जितना था। अभी क्या कि अभी कनक भी आ गई, सब कुछ आ गया। अभी लोगों ने कनक के ट्रक, आटे के ट्रक, सब ट्रक जो भेजने शुरू कर दिए। सो लंगर कभी खत्म नहीं होगा, ये तो चलता ही जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं अब ये भी जानना चाहूँगा, आपको मेडल ऑफ फ्रांस भी से भी नवाजा गया है, और साथ में फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर 2019 से भी नवाजा गया था, और जहाँ पर आप फ्रांस गए थे वहाँ पर आपको ये सम्मान मिले हैं। उसके बारे में थोड़ा आप जिक्र करिए, थोड़ा बताइए ज़रा। शर्मा जी काफी अवार्ड मिल चुके हैं मेरे को। उन्होंने पीस कंपनी में दिया, जो अपनी ना पीस कमेटी तरफ से, तो वहाँ भी मेरे को उन्होंने लाइफ टाइम मेंबर लिया मेरे को। तो और भी काफ़ी है जी, अवार्ड तो बहुत मिल चुके हैं मेरे को। तो मैंने पहले बताया कि मेरे को तो अवार्ड की इतनी खुशी होती नहीं है। अभी घर में देखो, घर भरे पड़े हैं अवार्ड से। जैसे हम गिनती करने लगे तो मेरे ख्याल मोर देन 2000 जो अवार्ड हैं सारे संस्थाओं से या किसी गवर्नमेंट से, सब पड़े हुए हैं यहाँ। तो लेकिन वही नहीं, बताया कि बिल्कुल खुशी यही। मेरे को तभी होती है कि जब हम किसी का जी, भला कर लें। मेरा एक ही एम जी, है कि जहाँ मैं जाता हूँ कुछ भी मिलता है तो मैं करता हूँ नहीं, अभी इसको कर लें, अभी इसको कर लें, कि किसी ना किसी तरीके से हम जरूरतमंद तक पहुँच जाएं। चाहे वो उनको मेडिकल हेल्प देनी है, चाहे एजुकेशन देनी है, चाहे कोई विडो पेंशन, जब कुछ भी है वो देना, वो हम दे रहे हैं। अभी एक जो मेरा प्रोजेक्ट अभी रुके, नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा काम हमारा ये पंजाब में, हरियाणा में हम एक साथ शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जी। तकरीबन 7-8 स्कूल शर्मा जी आ रहे हैं हमारे, स्पेशल बच्चों के लिए, जिसमें डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, तो हैंडीकैप्ड पटियाला बच्चे में हैं। तो आपका स्कूल पहले से ही चल रहा है, पटियाला में जो नहीं, है। वो स्कूल चल रहा है, वो एक जो स्कूल चल रहा है, 25-26 स्कूल और चल रहे हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी तरफ से जा रही है। लेकिन अभी जो 8 जो हमारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके लिए लैंड हमने परचेज कर ली है ऑलरेडी। तो तकरीबन तकरीबन 12,000 बच्चे जो हैं स्पेशल बच्चों के लिए, ये हमारे स्कूल आ रहे हैं। और इसमें स्पेशल हम कर रहे हैं जो कि 3-3,500 बच्चों का जो हॉस्टल है इसमें। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा स्कूल आ रहा है वो उधर आ रहा है, अबोहर में आ रहा है, फाजिलका अबोहर साइड में। तो वहाँ हमने 12 एकड़ जगह परचेज की है। तो उसमें कोई 1200 बच्चों का जो स्कूल है, तो 300 बच्चों का, 600 बच्चों का हॉस्टल आ रहा है उसमें। तो ऐसे ही पटियाला में एक और आ रहा है, अमृतसर में आ रहा है, नालागढ़ में एक आ रहा है, एक कुरुक्षेत्र हरियाणा में आ रहा है, हिसार में बन रही बिल्डिंग हमारी। सो ये सारे काफ़ी आ रहे हैं। इसके अलावा एक जो हमारा नया प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया था, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शर्मा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने आँखों के कैंप शुरू किए थे। तो अभी तक कोई 39,000 जो इसके ऊपर हम आँखों के मोतिये के ऑपरेशन करके हम लेंस डाल चुके हैं, जो टोटली फ्री होता है। उसके बाद जी, सेकंड जो हमने स्टेप उठाया था वो डायलिसिस का था, कि जो बहुत महँगा हो चुका था। हम अभी 200-300 रुपए में कर रहे हैं, जो मार्केट में आज भी 4,000 का होता है एक। तो वो पकड़ा। तीसरा जो मैंने महसूस किया था कि लोग जो बीमारी से मर रहे हैं, अचानक आ जाता है जी, लंग्स कैंसर हो गई इसको जी किडनी फेल हो गई, इसका हार्ट अटैक हो गया। तो रीज़न क्या था कि लोग टेस्ट नहीं कराते थे। टेस्ट इतने महँगे हो चुके थे, पूरी लुट मची हुई है कि वो तो बस सोचते हैं कि आदमी फँसा नहीं हमारे पास, तो इसके जेब खाली कर लो। तो इतने जी, महँगे टेस्ट थे, लोग फिर टेस्ट कराते नहीं थे। उनको ये था कि अगर हमने टेस्ट करा लिया, कोई ऐसी हमारे को भयानक कोई बीमारी निकल आई, तो हम उसका ट्रीटमेंट तो करा नहीं पाएँगे, क्योंकि हम तो टेस्ट भी नहीं करा पा रहे, तो ट्रीटमेंट कैसे कराएँगे? तो जिस बिल्कुल। आदमी ने 1 साल या 2 साल जीना, वो 15 दिन भी नहीं जी पाएगा, जिस दिन उसको मालूम पड़ गया कि मेरे को कैंसर है। मानसिक मानसिक या दबाव में आ मेरी जाएगा। किडनी, हाँ, तो वो हो जाएगा, इसलिए टेस्ट नहीं कराते थे। इस चीज़ को देखते हुए ट्रस्ट की तरफ से हमने लास्ट ईयर गुरु नानक देव जी का जो बर्थडे था अभी उनका 550 साल, तो उसमें हमने प्रकाश महोत्सव। 50 हाँ, उसमें हमने 50 जो है लेबोरेटरीज़ हमने खोलने का फैसला किया था, जिसमें लॉकडाउन से पहले हमारी 16 लेबोरेटरी जो हमारी वो ऑपरेशन में आ गई थी। 7-8 अभी आने वाली थी, लेकिन इसकी वजह रुक गई। लेकिन अभी जब स्टार्ट होता है तो हम इसको पूरा कर देंगे। उस लेबोरेटरी में क्या है शर्मा जी, जो जैसे एक पैकेज बना होता है टेस्ट कराने हैं, मार्केट से कराएंगे तो उसका जो है 3,000 से 3,500 खर्चा आएगा पूरे पैकेज का, टेस्ट का। वही सेम पैकेज जो हमारी लेबोरेटरी में है वो 350 में है। सो 10-12% पे हम काम कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के बिल्कुल, ऊपर। और बिल्कुल। इतनी इतनी अच्छी मशीनरी रखी, क्योंकि हमने कम्पिटिट करना है सबसे। कल को कोई भी अपने को चैलेंज कर सकता है, इसलिए हमारी मशीनरी A1 होनी चाहिए, रिजल्ट हमने जी, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, और टेक्नीशियन जो है वो बहुत वेल क्वालिफाइड चाहिए।
तो अच्छे मैंने टेक्नीशियन रखे हैं, 80 मशीनरी है और 16 की 16 हमारी लेबोरेटरी जो है वो चल रही है। जैसे ये फैसिलिटी हमने दे दी है और इसमें कोई ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो कि टेस्ट भी नहीं पैसे नहीं दे सकते, कुछ नहीं, और उनको बीमारी निकल आती है, तो उसका ट्रस्ट की तरफ से हम पूरे ट्रीटमेंट के साथ करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उनको। तो भी उनको यह महसूस ना हो कि हमने टेस्ट कराया, बीमारी अभी कैसे कराएंगे, वो भी हम पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है मेडिकल स्टोर्स। तो जहाँ जहाँ अभी हमारी लेबोरेटरीज खोल दी हैं उसके साथ ही हमारे जो है सस्ती दवाइयों की दुकानें जो है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता जो जितनी ज़रूरत है आम आदमी को, तो हमारी ट्रस्ट की यह कोशिश है कि हम 1 to 1 करके 1 by 1 करके तो इसको हम पूरा कर लें। बहुत खूब। तो आप अगर ये तो गर्मियों का मौसम चल रहा है इस समय, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो 2 चीज़ें जो आप करने के लिए जाने जाते हैं, एक कि आप जब कंबल वितरण करते हैं और दूसरे जो रिफ्लेक्टर स्टिकर्स की जो आपने मुहिम छेड़ी है वो अपने आप में बहुत ही अनोखी पहल है, क्योंकि आप ये सुनिश्चित करते हैं कि ताकि धुंध के समय जब ये फॉगी एनवायरनमेंट होता है और आगे रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता वाहनों को, तो वो वाहन चालकों को, तो वो रिफ्लेक्टर स्टिकर्स जो हैं गाड़ियों के पीछे लगे हों तो उससे जो है एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है और सुरक्षित लोग अपने घर पहुंच जाते हैं जितने जो वाहन चालक हैं। तो उसके वो एक अपने आप में बहुत ही अनोखी पहल आपने जो आपकी सोच वहां गई और वो आप कई सालों से कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है जो आपने जो एंशियंट मार्शल आर्ट्स है, जो एक सिख ट्रेडिशन की बड़ी जिसमें हमेशा फख्र रहा है पूरी सिख कौम को और पूरे हिंदुस्तानियों को, वो गटका स्पोर्ट को आपने जो आगे आप लेके आए हैं और आपका एक सपना है कि आप उसको ओलंपिक्स तक लेके जाएं, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल शर्मा जी, जैसे आपने बात की ना ब्लैंकेट्स 25-30 हज़ार ब्लैंकेट जो है वो हम जरूरतमंदों को बांटते हैं, वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे मैंने बताया कि हमारी टीमें बनी हुई हैं, सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बिल्कुल वरीड नहीं होता हमारा। और आपकी सबसे मैं एक उसकी सबसे अच्छी बात आपकी जो आप कंबल देते हैं वो आप कंबल ये सुनिश्चित करते हैं कि कंबल जो जेन्युइन है, जो वाकई में जरूरतमंद है उसी तक पहुंचे, तो ये सबसे अच्छी बात है। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होती या वो बिल्कुल बिल्कुल सेम शर्मा जी, वही हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, जैसे हम राशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वैसे ब्लैंकेट भी ऐसे जाते हैं। तो पारदर्शिता, जो आपने रिफ्लेक्टर की बात की है, 2013 में हमने ये रिफ्लेक्टर लगाने शुरू कर दिए थे। इतने एक्सीडेंट होते थे तो धुंध की वजह से, फॉग की वजह से, तो उसके लिए हमने पहले जैसे 50,000 रिफ्लेक्टर लगा दिए, फिर 2 लाख हो गए, फिर 6 लाख हो गए, फिर 20 लाख तक रिफ्लेक्टर जो है हमारे चले हैं। तो वो पहले पंजाब में शुरू किए, फिर हरियाणा, फिर ये सब अभी सब स्टेटों में जैसे ना, तो अभी 3-4 स्टेटें अभी भी हम कवर कर रहे हैं। दिल्ली में भी करे हैं, आपने दिल्ली में भी करे हैं डॉक्टर ओबराय? दिल्ली में भी करें, लाखों की गिनती में जो हमारे ना ये रिफ्लेक्टर जो है हर साल लगते हैं। उसका सिर्फ मकसद यही है कि अगर हम रिफ्लेक्टर, चलो जितना भी खर्चा आता है, खर्चा की अगर हमने 5-10 जानें भी बचा ली ना, तो हमारे ये पैसे पूरे हो गए जो हम रिफ्लेक्टर के ऊपर खर्च करते हैं। सो वो हमारे पूरे हो जाते हैं, बस चाहे इतनी लेकिन ज़्यादा बचती हैं, ज़्यादा एक्सीडेंटल से बचाव होता है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि हमने रिपोर्ट्स मांगी है कि इस रोड पे या इस पास इतने एक्सीडेंट होते थे, तो इसकी वजह से इतनी कमी हो गई है। उसमें मैं थैंक्स करता हूँ प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, कि जहाँ भी हमने रिफ्लेक्टर लगाने होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा हमारे साथ आता है। हमारे साथ मिलकर वो गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, तो उसको रिफ्लेक्टर, चाहे ट्रॉली आ रही हैं, चाहे 3 व्हीलर्स आ रहे हैं, चाहे ट्रक्स आ रहे हैं, तो उन सब के आगे जो है, आगे पीछे हम जो वो रिफ्लेक्टर लगाते हैं और बहुत कामयाब हो ये हमारा है। अभी आपने जो गतके की बात की, गतका बिल्कुल ठीक है, गतके के लिए हमारा सिख मार्शल आर्ट है, तो इसको हम काफ़ी प्रफुल्लित कर रहे हैं। मैं एशिया गतका फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और वर्ल्ड गतका फेडरेशन जी उसका मैं फाइनल सेक्रेटरी हूँ। तो इसलिए अभी हमने कोई 32-33 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ हमारी जो ऑलरेडी वहाँ बन चुकी हैं हमारी, तो बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि यहाँ तो हमने डिप्लोमे शुरू किए हुए हैं पंजाब में, तो यूनिवर्सिटियों में, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी है, या खालसा कॉलेज है, तो वहाँ हमने 25 या 50 जो है लड़के डिप्लोमा के लिए तैयार किए हैं। उनका जितना खर्चा, एक आदमी ने डिप्लोमा करना है 1 साल का, तो उसको 32,000 का खर्चा होता है एक का, तो वो उससे हम कुछ नहीं लेते, वो सारा जो खर्चा है वो हमारा ट्रस्ट ही कर रहा है। तो इसको हमारी कोशिश है कि हम इसको एशिया कप होगा, फिर वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद हम ओलंपिक तक इसको एज ए स्पोर्ट्स जो है वो पूरी जाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज ये उम्मीद हम रख रहे हैं कि आज जितने हमारे दर्शक आज साथ जुड़े हैं और बाद में भी जो इसको देखेंगे आज
यूट्यूब के माध्यम से या हमारे फेसबुक के पेज के माध्यम से 10 न्यूज़ नेटवर्क पे, तो वो काफ़ी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आप कई सालों से आपने लोगों के एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं और आपने जो उदाहरण सामने रखे हैं और वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। और कोरोना काल के इस दौर में आपकी भूमिका और आपका योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है और ये हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा देता है पूरे विश्व में कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और कहा भी जाता है सेवा ही परमो धर्म है, और मानव सेवा ही परमो धर्म है। तो वो आपने सही मायने में आपने उसको जिया है और लोगों के सामने एक ऐसी नज़ीर पेश करी है आपने और आपकी इस सर्बदा भला इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे को अवगत कराया कि आप जो इस समय कोरोना काल में जो आपकी संस्था जो काम कर रही है और कैसे ये सुनिश्चित करने में लगी है कि जरूरतमंद जितने भी लोग हैं, जहां पर भी हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी राज्य के हों, और उन तक जो है उनकी जरूरतों को पूरा करा जाए और ताकि वो जिंदगी अपने सामान्य तरीके से दोबारा जी पाएं। क्योंकि अब ये बात तो निश्चित है कि कुछ समय और हमें इस कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, लेकिन आपने जन जागृति भी फैलाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है और आप की पूरी संस्थान को हम नमन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर भाई, थैंक यू जी। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और ये थे डॉक्टर SP ओसुब्रॉय, जो वाकई में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जो भी इन्होंने काम का बेड़ा उठाया है उसे पूरा करके ही इन्होंने चैन की सांस ली है और ये आज हमारे साथ रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओबरॉय का और तमाम दर्शकों का, धन्यवाद। थैंक यू।